مصطفیٰ کے جیسے ہی وہ آزاد ہو جایا کرتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آج میں نے دنیا میں پہلا قدم رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء احمد کے جانثاروں، آقا انعامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جیسا کہ ابھی آپ نے نعت شریف میں سنا آئی لو محمد، یعنی محبت کا اظہار کرو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرو، ایسی محبت کرو جو جان سے بھی زیادہ ہو، مال سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، بلکہ جتنی محبت آپ دنیا میں جن سے بھی کرتے ہیں تمام محبتوں میں سب سے زیادہ میرے آقا سے محبت۔ اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، پھر عرض کرتے ہیں حضرت عمر، یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کامل اس وقت ہی ہوگا جب آقا سے محبت اس طرح کی جائے کہ ماں سے بھی زیادہ آقا سے محبت ہو، اولاد سے بھی زیادہ آقا سے محبت ہو، بلکہ پوری دنیا سے زیادہ آقا سے محبت ہوئی جائے، تبھی کامیابی ہے۔ آج ہم آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے لوگوں کے اعتبار سے، مثال کے طور پر وہ نماز پڑھتا ہے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھتا ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، وہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، ہم بھی مانیں گے۔ ایک یہ محبت ہوتی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے ہم رسول اللہ کو مانیں گے، کوئی اقرار کرے یا نہ کرے ہم رسول اللہ کا اقرار کریں گے۔ ایسی محبت ہونی چاہیے، تب جا کر کامیابی ہے۔ آج آپ جانتے ہیں دنیا کا جو ماحول ہے وہ ہے پیسہ۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرے ہاتھوں میں ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ آج پیسے پر فخر کیا جاتا ہے، جس کے پاس دولت آ جائے وہ
समझता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। आज फख्र किया जाता है जब किसी के पास दौलत होती है, लोग उसे अच्छा समझते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसकी वाहवाह करते हैं, लोग उसे अच्छा जानते हैं। लेकिन जब मेरे आका का दौर था, उस वक्त में पैसे को तरजीह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब रिजवी, कारी लुकमान साहब रिजवी, आप हजरात बैठे, आप हजरात तशरीफ रखें। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि मोहब्बत सबसे ज्यादा आता है, कोई कुछ भी कहे। आई लव मोहब्बत में बहुत सारे आपने सुने होंगे आजकल क्या क्या हो रहा है। हमें ये साबित कर देना है, बल्कि पूरी दुनिया के हर कोने पे जहां मौका मिले हमें ये बता देना है कि हम अपने आका से मोहब्बत जो करते हैं, हम दुनिया में किसी और से इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। हम हर चीज से ज्यादा आका से मोहब्बत करते हैं, तभी जाकर कामयाबी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मोहब्बत हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम कामयाब होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत की जाती है तो वो पैसे से मोहब्बत की जाती है। आज दुनिया में किसी को अच्छा समझा जाता है तो जिसके पास पैसा हो उसे अच्छा समझा जाता है, उसको फख्र, उस पर फख्र किया जाता है। मगर मेरे आका का जो दौर था, उस दौर में फख्र जो इंसान करता था वो किस बात पर करता था? वो लोग माल पर फख्र नहीं करते थे, वो लोग आजादी पर फख्र करते थे, क्योंकि उस वक्त लोग गुलाम हुआ करते थे। जो गुलाम होता था वो ये सोचता था कि कब मुझे आजादी मिलेगी, कब मैं आजाद हो जाऊंगा। जब वो आजाद होता था तो फख्र करता था, ऐसा लगता था कि आज वो दुनिया में आया है। जब तक वो गुलाम रहता था अपने आप को दुनिया में महसूस ना करता था, अपने आप को दुनिया में ना समझता था। लेकिन जैसे ही वो आजाद हो जाया करता था वो ये समझता था कि आज मैंने दुनिया में पहला कदम रखा है। उस वक्त में आजादी सबसे बड़ी चीज थी, आजाद होना सबसे अच्छा समझा जाता था। जो आजाद था वो ये समझ ले कि उस दुनिया, उस जमाने में वो सबसे अच्छा था। जो गुलाम था वो परेशान था, क्योंकि जो आका कहेगा वो करना होगा, जैसा आका कहेगा वैसा ही करना होगा। लेकिन कुछ गुलामी ऐसी होती है जो आजादी से बेहतर होती है, कुछ गुलामी ऐसी होती है। हजरत ज़ैद के बारे में तो आपने सुना होगा, उन्हें बचपन में ही अगवा कर लिया गया, जगह जगह उन्हें बेचा गया और बेचा गया जगह जगह, यहाँ तक कि हजरत खदीजतुल कुबरा के भतीजे ने उसे खरीदा। हकीम बिन हज़ाम नाम था, खरीद कर लाए तो वो बेचे जा रहे थे, खरीदा जा रहा था। यहाँ तक कि आका की बारगाह में वो आए, हजरत खदीजा ने उनको दिया। आका की बारगाह में रहते थे, गुलामी थी, गुलाम बनकर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस दौर में आजाद होना सबसे बड़ी चीज थी, आजादी। लेकिन गुलाम थे, आका के गुलाम, आका की बारगाह में रहते थे। उनके माँ बाप थे, परेशान थे, गली गली में रोना था, लोगों से पूछना था क्या तुमने हमारे बेटे ज़ैद को देखा है। माँ अलग पूछा करती थी, वालिद अलग पूछा करते थे। यहाँ तक कि वालिद ने कुछ अशार भी लिखे थे जो पढ़े जाते थे अपनी बेटे की याद में। माँ बाप रोते थे, सुबह होती तो रोते हुए, शाम होती तो रोते हुए लोगों से पूछा करते थे क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है, ज़ैद को देखा है। मेरा बेटा बचपन से अगवा है, उसे ढूंढा जा रहा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। एक मौका ऐसा आया, वहां के लोग गए थे और उन्होंने वो अशार पढ़ रहे थे ज़ैद के बारे में कि उनके जो वालिद साहब ने अशार लिखे थे, वो कह रहे थे कि एक ज़ैद है जो बचपन में गुम हो गया है, उसकी तलाशी है। और उसी रास्ते से हजरत ज़ैद का गुजर हुआ, उन्होंने पहचान लिया और पहचानने के बाद उन्होंने पता किया कि ये ज़ैद कहाँ रहता है।
पता होने के बाद मालूम हुआ कि ये आका की बारगाह में अब्दुल्ला के बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहता है। ये खबर जाकर उन्होंने उनके वालिद वालिदा को बताई। वो लोग खुश हुए, शादमानी हुई। कब से ढूंढा जा रहा है, कई साल हो चुके थे, ढूंढा जा रहा था मगर वो मिल नहीं रहे थे। रातों दिन रोया जा रहा था। सुबह होती तो आंसू बहते, शाम होती तो आंसू बहते। लोगों से पूछा जा रहा था, जिक्र किया जा रहा था, क्या तुमने मेरे बेटे, मेरे लख्ते जिगर हजरत ज़ैद को देखा है? क्या मेरे बेटे ज़ैद को देखा है? लोगों से पूछा जाता है, लोगों से मालूम किया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं हमने तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा है। वो महरूम हो जाते। आज वो घड़ी आई है, किसी ने आकर खबर दी है कि आपके बेटे को हमने फला जगह देखा है, उसकी बारगाह में देखा है। जैसे ही खबर मिली है, वालिद चल पड़े हैं। साथ में उनके चचा भी, यानी हजरत ज़ैद के चचा भी, वालिद भी आ रहे हैं उनको लेने के लिए कि कुछ रकम देकर ले लेंगे, क्योंकि मोहब्बत थी। करीब आए, जैसे ही पहुंचे और बारगाहे खुदा, बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, इसे हम लेना चाहते हैं, इसे आप गुलामी से आजाद कर दें। जिस वक्त ये आए थे ना, उस वक्त मेरे आका जिस आलम में रहते थे ना, वो आलम ना था जब उन पर कूड़ा फेंका जाता था, बल्कि अब बहुत अच्छे आलम में थे। अब कोई अगर लेने आता तो उसे फिदिया देना पड़ता। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम्हारा बेटा जाना चाहता है तो तुम उसे ले जाओ, फिदिया देने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो जाना चाहता है तो लेकर चले जाओ। बाप गया बेटे के पास और जाकर कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी अम्मी जान तुम्हें याद कर रही है, तुम्हें याद करके रोती है, सुबह से शाम हो जाती है, तुम्हें याद करती रहती है। घर चलो, हम तुम्हें आजाद करने के लिए आए हैं, तुम चलो। जैसा कि मैंने बताया कि उस दौर में गुलामी बल्कि आजादी के लिए लोग सोचा करते थे कि आज हम आजाद हो जाएं। जो आजाद हो जाता था वो अपने आप पर फख्र करता था, लोग उसकी तारीफ करते थे, लोग उसके बारे में बताया करते थे, देखो फला आजाद हो गया, फला कितना किस्मत वाला है। वालिद साहब आए और आने के बाद कहते हैं कि बेटे चलो मेरे साथ। जाने की ये कह रहे हैं, लेकिन बेटा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। बाप ने समझाया कि चलो, तुम्हारी वालिदा तुम्हें देखना चाहती है, चलो हमारे साथ। लेकिन हजरत ज़ैद जाने के लिए तैयार नहीं, जाना नहीं चाहते। बाप ने समझाया, क्या तुम नहीं जानते कि आजादी और गुलामी में क्या फर्क होता है? जब तुम आजाद हो जाओगे तो अपनी जिंदगी जियोगे, जिस तरह तुम चाहोगे उस तरह जियोगे। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम पर हुक्मरानी करने वाला नहीं होगा। चलो, बाप समझा रहा है। क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? क्या तुम बचपना भूल गए? क्या तुम अपने वालिद को भूल गए? क्या अपनी वालिदा को भूल गए हो? लेकिन हजरत ज़ैद बाप की बातें सुन रहे और अर्ज करते हैं, अब्बू जान मैं नहीं जा सकता, अब्बू जान मैं नहीं जा सकता। बाप गुस्सा हुआ, क्यों नहीं जा सके? मेरे रिश्ते जिगर क्या कमी है, क्यों नहीं जा सकते? हजरत ज़ैद अर्ज करते हैं, अब्बू जान मैं नहीं जा सकता, अब्बू जान मेरा दिल गवारा नहीं करता, अब्बू जान मैं नहीं जा सकता। फिर उनके अबू जान कहते हैं, क्यों नहीं जा सकते? मुझे कम से कम बताओ तो सही, जब मैं जाऊंगा तुम्हारी वालिदा को जवाब दूंगा कि तुम्हारा बेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया, मैं वजह भी बताऊंगा। तो हजरत ज़ैद ने अर्ज किया, अबू जान बात ये है कि मुझे आजादी पसंद नहीं है, मैं आका की गुलामी में हूँ। मुझे ये गुलामी हजारों आजादी से बेहतर है। जो शफकत मेरे आका मुझ पर करते हैं, हजारों माँ बाप मिलकर नहीं कर सकते।
اس جگہ سے میں نہیں جا سکتا. تو یہ وہ غلامی تھی. آقا سے ایسی محبت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقت کی بہت کمی ہے. آج میں کچھ زیادہ تیاری کر کے آیا تھا تاکہ بچوں کی جو خواہش ہے کچھ بول پاؤں، لیکن یہاں پر مفتی عبدالستار صاحب جو میرے بھی استاد ہیں، حقیقت میں ہے، ایسا نہیں میں وسیع بول رہا ہوں، میرے بھی استاد ہیں، میں نے بھی ان سے پڑھا ہے. اور قاری لقمان زرتاب جامی صاحب جو آپ جانتے ہیں کہ صرف آپ کے بنگال میں پروگرام نہیں کرتے بلکہ یو پی وغیرہ پورے ہندوستان میں ان کی نعت خوانی ہوتی ہے. بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں، ان کو بھی ہمیں سننا ہے، ہر چیز کو سننا ہے. انشاءاللہ آپ سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، کبھی اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ بیان ہوگا. اب جو میں نے بیان کیا اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.